Hmm. See, velocity we have discussed, average velocity, instantaneous velocity, right? ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी ना. कंपोनेंट्स भी हमने देख लिए थे, बट स्टिल दो चार एग्जांपल और लिखता हूं मैं टू गिव यू अ फील ऑफ कंपोनेंट्स. सपोज क्वेश्चन है, suppose there is a water body, there's a still water, still water, right? And there's a boat, this PO boat, move in this direction. Velocity is in this direction. It's moving with 20, 2 meter per second in this direction, right? This angle is 37 degree. Hmm. Hmm. This is very wide. This is समझो एक वाइड रिवर है, बट उसमें स्टिल वाटर है. I'm using a word wide river, but water is still. So still water है, and there's a boat which sails in a direction of 37 degree with this line, one of the banks. 37 degree with this bank at the speed of 2 meter per second. That means velocity is 37 degree with the bank, and the magnitude is 2 meter per second. Question is, there's a line BC which is perpendicular to this bank, and B being 12 meter from this. Question is, after how much time will this cross this line? After how much time this boat will cross the line BC? I'll repeat the question. वापस explain करूं question? Yes, sir. Yes, sir. See, there's a wide river है, ठीक है. ये width का आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है. ये पॉइंट ए है, यहां से एक बोट स्टार्ट करता है 2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री टू द विद द बैंक, वन ऑफ द बैंक्स. इस बैंक के साथ 37 डिग्री पे 2 मीटर पर सेकेंड पे सेल करें. At a distance of 12 meter, there is a point B, and BC being a line perpendicular to this bank. Question is, after how much time the boat will cross? After how much time boat will cross the line BC? And question is, pehla, after how much time boat will cross BC? सीधा. दूसरा, distance BD, where D is point at which boat crosses BC. Many ways are there to solve this problem. Try it. I'll give you 2 minutes, or try करो 2 minutes सोचो. Sir, give some extra time. Okay. Take 5 minutes, but do it. Sir, 4.8 seconds. 4.8 seconds. 0.
No. Sir, 7.5 seconds. 7.5 seconds is correct answer. और कोई ट्राई कर रहा है? Or I'll explain on board. And how much is distance BD? Sir, just a second. 9. Yes, sir. 7.5 आ रहा है. Correct. And this is 9. वो भी correct है. चलो मतलब almost सबने किया है. Okay. Now see there are two different ways to look at this problem. One is this is 12 meter. This angle is known by using trigonometry. You can measure this distance, and then time taken is average velocity. Displacement by average velocity. Yes, sir. So this is one way. अब मैं इसको आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ. ये वेलोसिटी है. Velocity is 2 meter per second at an angle of 37 degree. Right? Now, suppose this is x-axis and this be your y-axis. So I want you to find component of velocity along x. Sir, u cos theta. U cos theta. So 2 cos 37 degree. Cos 37 is 0.8, so 1.6 meter per second. This means boat is moving at an angle of 37 degree with one of the banks at 2 meter per second. But this can also be used as or explained as boat is moving at the rate of 1.6 meter per second along AB in this direction. And component of velocity along y-axis. Let us name this line as y-axis. The component of velocity along y-axis is what? 2 sine 37 degree. That is 1.2 meter per second. So instead of saying that boat is moving with 2 meter per second in a direction making 37 degree with one of the banks, we can say it moves 1.6 meter per second along x and 1.2 meter per second along 1.2 I cap, 1.6 j cap. Correct. So its velocity can also be expressed as velocity is 1.6 I plus 1.2 j. If this is x-axis and this is y-axis, right? Now, how do we use this data? Question is, can I use this data directly? So answer is yes. Look at the problem this way. Distance to be covered along x-axis. Distance to be covered along x-axis is 12 meter. Velocity along x-axis is 1.6 meter per second. Therefore, time taken can be written as distance measured along x upon x component of velocity. So 12 divided by 1.6. So this is 7.5. This is what I want to do. I'll explain again. सर हमने Sir, time taken is equal to से बताओ ना. See, जैसे आप क्या बोलते थे? Time taken is actual displacement by actual velocity. Average velocity का formula क्या? Displacement by time taken. So one way of looking at the problem is measure the actual displacement, measure the actual velocity divided. The other way of looking at it is displacement along x upon component of x. X component of velocity.
जैसा आपने टाइम देखा, टाइम कैन बी रिटन एज AD अपॉन एक्चुअल वेलोसिटी. You can also write it as, suppose this distance is x upon x component of velocity. This is displacement along y. तो y upon y component of velocity, ये सब सेम आएगा. कि अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आया है वो जानते हो, एंड उस डायरेक्शन के वेलोसिटी का कंपोनेंट जानते हो, तो डिवाइडेड यू विल गेट द टाइम टेकन. ओके सर. समझो. हाँ, मैंने मोशन को इस डायरेक्शन में देखा. मैं बहुत दूर से यहां से जब देखता हूं ना, तो मुझे ये नहीं पता चलता कि ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है. मुझे क्या दिखाई देता है? 1.6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है. बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है ये, बहुत ध्यान से देखना. ये एक्चुअल में 2 मीटर पर सेकंड से यहां से जा रहा है, ऐसा जा रहा है. अगर आप बहुत दूर से यहां से ऑब्जर्व करोगे ना, ये अभी आप बोर्ड में देख रहे हैं नहीं, मैं जो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा आ रहा हूं, हॉरिजॉन्टली लग रहा है. हाँ ऐसा लग रहा है, बट एक्चुअली मैं क्रॉस इधर आ रहा हूं ऐसा. तो आप बहुत दूर से देखोगे तो आपको लगेगा ये साइड से कि ये सीधा जा रहा है. अगर यहां से देखोगे तो आपको लगेगा ये ऐसे जा रहा है. एक्चुअल में ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना. अगर आप बहुत दूर से यहां से देखोगे तो आपको लगेगा 1.6 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है. इधर से देखोगे तो आपको लगेगा 1.2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है. बट रियलिटी में वो दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए तो उसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन और मोशन इन 2 डायमेंशन. वो ऐसा जा रहा है. नहीं, तो जब यहां से देखोगे आप तो आपको लगेगा उसको 12 मीटर डिस्टेंस कवर करना है 1.6 का स्पीड से. जब भी आप यहां से बहुत दूर से देखोगे तो आपको लगेगा उसको ये डिस्टेंस कवर करना है और 1.2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से. यस सर. पक्का मन मार के मत बोलो, अगर समझा तो ही बोलो. सर समझा अच्छे से. ओके. सो यही है कंपोनेंट वेलोसिटी का यूज करना, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट. एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कुछ और है, एक्चुअल वेलोसिटी कुछ और है. बट मैंने दोनों चीज को रिजॉल्व करके देख लिया तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया. ऐसे बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा इस प्रॉब्लम में, बट आगे की प्रॉब्लम में बहुत आसान होगा. तो मैंने क्या नोटिस किया? डिस्टेंस टू बी कवर्ड अलोंग एक्स एक्सिस इज 12 मीटर. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज 2 into cos 37, 1.6 meter per second. So time taken will be 12 upon 1.6, that is 7.5 second. ठीक है. अब मैंने क्या नोटिस किया, ये इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से जा रहा है? 1.2 मीटर सेकेंड से. तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन. तो भाई यहां से यहां पहुंचने को उसको टाइम तो 7.5 सेकेंड ही लगा था. तो 1.2 into 7.5, तो ये हो गया 9 मीटर. सो आंसर इज 9 मीटर. वापस एक्सप्लेन करूं? नहीं सर ये समझा. ओके. सो दिस वाज द क्वेश्चन. या सर अगर वो जो बैंक है सर जो ए बी के साइड में, अगर वो ए और सी के साइड में होता तो सर फिर वाई कंपोनेंट से लेके भी आ सकता था ना टाइम? नहीं समझा मैं. ये डी अगर सी की जगह होता ऐसा? नहीं सर, मतलब सर अभी तो बैंक्स ए बी और सी और ए के जो ऊपर पॉइंट है उधर है ना. ये एक बैंक है. हाँ ये एक बैंक है. हाँ सर, अगर वो मतलब स्क्वायर के साइड करेंगे तो जो अभी ए और सी और बी और सी देखेंगे ना बैंक के लिए, हाँ. सर तभी हम y कंपोनेंट से देख के भी तो आंसर आ सकता है. डियर मैं क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा हूँ. आई रीड रॉ द फिगर. यू वांट टू से ए बी यहाँ है, ठीक है, एंड दिस इज सी. दिस वे यू आर सेइंग सर एक डी पॉइंट भी डाल दो ना सर, एक स्क्वायर टाइप. एक स्क्वायर यहाँ पे डाल देता हूँ. चलो डी ऐसा है. हाँ हाँ. अभी बैंक्स कौन से हैं और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? सर किस सेम. डायरेक्शन में जाता है? हाँ सर सेम ही डायरेक्शन में. 37 डिग्री 2 मीटर. हाँ सर अभी बैंक ए डी और बी सी होगा तो सेम ही होगा क्या? अच्छा. हाँ तो बैंक्स एडी और बीसी रहेंगे, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा. ऐसा नहीं जाके ये इनकी बात कर रहा है ना, ये बैंक है तो क्वेश्चन प्रॉब्लम तो वैसे ही रह जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता.
These are the banks of river ना. हाँ सर. हाँ तो let it be. मुझे तो ये पता करना है कि ये कितने दूर में क्रॉस करेगा, तो ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये डिस्टेंस पता होना चाहिए. तो दिस डिस्टेंस अपॉन x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दिस डिस्टेंस अपॉन y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. हाँ सर, समझा. ओके. Now let me redraw another figure. थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेंगे इसमें, ज्यादा नहीं. ये है A B C. Okay. A से B पहुंचने को टाइम लगा लेटस से 8 सेकेंड. एक्चुअल में एक बाइक है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. दिस बी अलोंग x, दिस बी अलोंग y इन राइट एंगल. ठीक. तो एक्चुअल में उसको यहाँ से ये डायरेक्शन में जाने से ये डायरेक्शन में जाने से टाइम लगा 8 सेकेंड. एंड ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री ले लो. दिस डिस्टेंस इज sorry, you have to find actual velocity. Find actual velocity if distance BC is 6 meter. If distance BC is नहीं है, बड़ा आसान सही है, कोई बात नहीं. चलो ठीक है, कर. 8 सेकेंड्स लगा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए. फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी. कंपोनेंट्स है ना उसके. क्या? सी मतलब इजी सा क्वेश्चन, इसमें कुछ ज्यादा ट्विस्ट आ ही नहीं रहा. एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ पहुंच गया, उसको लगा 8 सेकेंड्स. ये डिस्टेंस 6 मीटर. यू हैव टू फाइंड एक्चुअल वेलोसिटी एज्यूमिंग दिस टू बी x एक्सिस एंड y एक्सिस. बेसिकली कंपोनेंट फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, एक्चुअल वेलोसिटी निकालना. बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही है. सर वेलोसिटी का कंपोनेंट्स बताना है. हाँ, कंपोनेंट फॉर्म में लेके आना. सर मतलब i और j के फॉर्म. 32/5 i कैप प्लस 24/5 j कैप. 25/4 6. नहीं ये इतना नहीं आएगा. 8 सेकेंड. दिस इज 8 सेकेंड लगा ना. 24/5 नहीं, इतना ज्यादा कैसे आएगा? 3/4 आएगा. सर वो a के ऊपर क्या लिखा है आपने? ए के ऊपर कुछ नहीं है, वो एक बाइक राइडर है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. सर इट्स मूविंग अलोंग. लगा सर. सॉरी. अच्छा. This is a bike rider moving in this direction with some velocity. I don't know how much. It took 8 seconds for him to move from here to here. If this distance is 6 meters, you have to express the velocity in terms of I and J. So actual velocity 1.25 meter per second है. 1.25 meter per second. हाँ ठीक लग रहा है. 6 हो गया ये 8 हो गया. 1.25 meter per second actual velocity. You have to express it in form of I and J. I J के फॉर्म में एक्सप्रेस करना. .9 meters I cap plus 0.7 meter J cap. 0.9 and 0.7 नंबर्स तो मैंने अच्छे लिए थे. चलो मैं बोलता हूँ. y कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डिस्टेंस टू बी कवर्ड अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस इज 6, तो 6 अपॉन टाइम टेकन इज 8, तो 3/4. y कंपोनेंट वेलोसिटी इज 3/4. x कंपोनेंट कितना हो जाएगा?
ये 6 है, ये पॉइंट 37 डिग्री है, तो ये 8 होगा, तो 8/8 तो 1 मीटर पर सेकेंड. तो x component is 3/4 मीटर पर सेकेंड, y component is 1 मीटर पर सेकेंड. तो बस आपको ये लिखना था, वेलोसिटी इज 1i plus 3/4j. सर वी वाई और वी एक्स कैसे एक बार बता सकते हो? लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? इफ दिस डिस्टेंस इज 6 मीटर, दिस एंगल इज 37, तो tan 37 is 3/4, तो 6/x. So 3/4 is 6/x. So x is equal to 6 4s are 24/3, that is 8. तो ये डिस्टेंस 8 हो गया. हाँ. तो 8 is the distance covered along x axis and time taken is तो 8 only. वो यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इधर से इधर का भी 8 है और इधर से इधर का भी 8 ही है. तो हाँ time सर, taken is 8. तो समझा. 8/8. हाँ, तो x component is 8/8, that is 1 meter per second. Y component is 6/8, that is 3/4 meter per second. So velocity in terms of I and j is 4/4i, that is I plus 3/4j. अगर कोई पूछेगा what is magnitude of velocity, तो root of 1 plus 9/16, that is 25/16, 5/4, that is 1.25 meter per second. Answer. The magnitude of velocity is 1.25 meter per second. मतलब there are different ways to solve this. मैं आपके दिमाग में कंपोनेंट यूज करना डालना चाह रहा हूँ, राइट? बिकॉज ये फिर आगे मौका नहीं मिलता है. सीधा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाएंगे उसमें कंपोनेंट से डील करना सीखोगे. आ रहा है समझ में? यस सर. तो उसको रब करता हूँ मैं. अब एक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में क्वेश्चन लिखता हूँ. Everything is SI unit. This is in meter per second. This is in meter. This is in meter. Everything is in meter. This again the same question, just expressed in terms of coordinates. बाकी करना वही है जो पहले किया था. सर वो क्वेश्चन क्या, फाइंड द टाइम इट टेक्स टू. Time it takes to cross the line y equals to 16 meter. Also find the coordinates of the points where it crosses the line y equals to 16 meter.
हाँ सर। यस सर। इतना साइलेंस क्यों, बताओ तो इतना आसान क्वेश्चन है। वेलोसिटी इज I plus 3j, start from -1 4। सर इमेजिन नहीं कर पा रहे। ओके, सी देयर आर डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड मैं बोलता हूँ, फर्स्ट मेथड। बहुत मेथड होते हैं। आप बताओ मुझे, वेलोसिटी दी हुई आपको I plus 4j, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इसमें कोई डाउट है? नहीं। नहीं। So t into velocity, velocity is I plus 3j। डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन पता है क्या आपको? नहीं, वही तो ढूंढना है। क्या ढूंढना?